Hello students, welcome to lecture number 10. We are on the urge of completing our chapter ratio. We still have around 36 questions. I'll be dividing equally into 3 parts. That would be 12 questions each lecture. So जितने questions मैं करवा रहा हूँ, remaining out of 12 would be given for you for practice. और इसके आंसर्स क्वेश्चन के पीछे असाइनमेंट के साथ गिवन है. Let's start with question number 41. I know question number 40 अभी pending है. I'll just make that pending. Question number 41. A firm current assets are 360 and current ratio is 3:1. Current assets हैं 3,60,000 और current ratio है 3:1. COGS is 12 lakh. What would be its working capital turnover ratio? Current ratio is equal to current assets upon current liabilities. As per question, current ratio is 3:1. 3/1 and current assets is given as 360, 3,60,000. When we solve that, what we get is current liability, which is nothing but 1,20,000. Current liabilities is 1,20,000. What about working capital? Current assets minus current liabilities. 360 minus 120, it's 2,40,000. मैंने क्यों वर्किंग कैपिटल निकाली है? क्योंकि हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो विच इज नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल. अगर आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में नेट सेल्स नहीं गिवन. क्योंकि नेट सेल्स नहीं गिवन, हमारे पास कोई डेटा भी नहीं है और कि हम नेट सेल्स निकाल पाए, तो हम COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल लगाएंगे, ना कि नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल. तो यू कैन जस्ट राइट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल, और यू कैन राइट लाइक दिस नेट सेल्स और COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 12 lakh COGS एंड द वर्किंग कैपिटल इज 240. बेसिकली हम ये इज्यूम करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट 0 है. क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट 0 इज्यूम किया जाता है, इस वजह से नेट सेल्स और COGS सेम हो जाते हैं. सो द राइट आंसर इज 5 टाइम्स. 41 का आंसर है बी इज करेक्ट 5 टाइम्स. बी इज करेक्ट 5 टाइम्स. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42. Moving to question number 42. Z Limited has a current ratio 3.5:1. Current ratio 3.5/1. What is current ratio? Current assets upon current liabilities. So 3.5 is equal to current assets upon current liabilities. That means 3.5 times current liability is current asset. Current asset is 3.5 times the current liabilities. The quick ratio is 1.5:1. Quick ratio is quick assets upon current liabilities. It is 1.5:1. So current ratio is quick ratio is 1.5 times quick assets upon current liabilities. So 1.5 current liabilities is quick assets. That is equation number 2. If the excess of current assets over quick assets are represented by inventory is 60,000. Current assets minus quick assets stock show कर रहा है 60,000. क्योंकि हमें पता ही होता है क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस.
इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो स्टॉक है वो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस है। ये स्पेसिफिकली मेंशन है, इफ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री। इसके कहने का मतलब है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस शून्य है, जीरो है। 60,000, so 60,000 is current assets which is 3.5 CL minus quick assets which is 1.5 CL. So 60,000 is 3.5 CL minus 1.5 CL. We'll get 60,000 2 CL, 2 current liabilities. That amounts to current liabilities is 60,000 by 2 which is 30,000. We get current liabilities 30,000. उन्होंने आपसे पूछा है कंप्यूट करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज तो आ गई, व्हाट अबाउट करंट एसेट्स? 3.5 CL, 3.5 into 30,000 which is equal to 390 15 1,05,000. So your answers are current assets is equal to rupee 105,000 and current liabilities which is rupee 30,000. Speed up. Moving to question number 43. The current ratio and liquidity ratios are 2.10:1 and 1.90:1. Stands for 2.1, 1.9. Current assets include inventory of 16,000. Stock 16,000 है. Current assets में stock 16,000 है. Find out liquid assets, quick assets and working capital. You do it yourself. Do it yourself, then verify your answer with the answer key given along with the assignment itself. Question number 44. Calculate current ratio from the following information. A good question it is. Current ratio निकालनी है. Inventory turnover 4 times. Inventory turnover ratio is COGS upon एवरेज स्टॉक। अगर हम क्वेश्चन में ध्यान दें तो क्वेश्चन में COGS नहीं गिवन और एवरेज स्टॉक भी नहीं गिवन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 20,000 लेस देन इन्वेंट्री एट द एंड। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग से 20,000 कम है, ठीक है। सेल 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। सो यहां से हमें वैल्यू मिलेगी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स into 100. Gross profit ratio is 25% and sales is 6 lakh. So 25 is gross profit upon sales 6 lakh into 100. That gives us the value of gross profit, which is 6 lakh का 25%. 25% of 6 lakh, which is 1.5 lakh. We'll get gross profit as 150. What is COGS? Net sales minus gross profit. That means 6 lakh minus 1,50,000 is
4.5 लाख. Every amount is in rupees. We'll get COGS is 4.5 lakh. COGS is 4,50,000 whole divided by average stock. What is average stock? Opening stock plus closing stock divided by 2. We have quick ratio. What is quick ratio? Quick assets upon current liabilities. The quick ratio we have is 0.75. We don't have quick assets, but we do have current liabilities. The current liabilities is 60,000. So 0.75 times 60,000 is quick assets. That gives us the value of quick assets, which is 60,000 into 0.75, 45,000. Inventory turnover ratio 4 times is given, तो इससे हमारे पास एवरेज स्टॉक आ जाएगा. हाउ मच इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? 4. COGS है, इससे हम एवरेज स्टॉक निकाल पाएंगे. एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 4, विच इज इक्वल टू 1,25,000 आई गेस. नो, 1,12,500. सो पहले हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो थी, उससे हमने एवरेज स्टॉक निकाल लिया. फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो थी, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया. फिर क्विक रेशियो थी, उससे क्विक एसेट्स निकाल लिया. सी, देयर आर 3 स्टेप्स. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से एवरेज स्टॉक आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जिससे COGS आ गया, और क्विक रेशियो से हमारे पास क्विक एसेट्स आ गया. मुझे लगता नहीं हमें COGS की ज़रूरत है, बट स्टिल वी हैव जस्ट कंप्यूटेड इट. एज सच मुझे नहीं लग रहा कि इसकी ज़रूरत होगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. What are quick assets? Current assets. Wait, we got average stock. What is average stock? Opening stock plus closing stock divided by 2. Average stock is opening stock plus closing stock divided by 2. Average stock है 1,12,500. Opening stock is 20,000 less than the closing stock. Opening stock closing stock से 20,000 कम है, तो हम closing stock को ले लेते हैं x और opening stock को ले लेते हैं x minus 20,000. आप ऐसे भी ले सकते हैं, opening stock को ले लो x, closing stock को ले लो x plus 20,000. Got it? Opening 20,000 कम है तो closing 20,000 ज़्यादा हो गया ना. Marks this question as important. काफ़ी सारी रेशियोज चेक हो रही हैं इस क्वेश्चन से. सो आफ्टर सॉल्विंग 112,500 इंटू 2 प्लस 20,000 245,000 इज 2x. सो x इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 122,500. राइट, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,22,500. नाउ व्हाट इज क्विक एसेट्स? व्हाट आर क्विक एसेट्स? क्विक एसेट्स आर करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. क्विक एसेट्स हमारे पास हैं 45,000. करंट एसेट्स हमारे पास नहीं है, वो हमने कंप्यूट करने हैं. क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल चुके हैं 1,22,500. प्रीपेड एक्सपेंसेस 0, जिसे सॉल्व करके हमारे पास करंट एसेट्स आ जाएंगे
167,500, हमारे पास करंट एसेट्स आके 167,500। पूछा क्या है? सबसे पहली वाली रेशो, सबसे इजी रेशो, करंट रेशो। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। 167,500 अपॉन करंट लाइबिलिटीज which is 60,000, 2.79:1। अगर आप ध्यान दें, मुझे इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं थी। हमें सपना थोड़ा आएगा कि पहले क्या करना है। मैंने तो आपको ये रूल बताया, जो फॉर्मूला गिवन है उसे पुट कर दो, जो जो सॉल्व होता है सॉल्व कर लो, वट एवर यू कैन सॉल्व सॉल्व इट, और हमारे पास आंसर आ गया है। तो ये जो जीपी रेशो के बारे में गिवन था उसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन थी, बट अकॉर्डिंग टू आवर रूल हम कंफ्यूज नहीं हुए, बल्कि हमें एक्स्ट्रा डेटा मिल गया। 1 मिनट, क्वेश्चन 44 कंप्लीट कीजिए, स्पीड अप, कंप्लीट क्वेश्चन 44। Moving to question number 45. Moving to question 45. Current liabilities of a company is 160. Current liabilities of a company is 160. Liquid ratio, quick ratio is 1.5:1. Current ratio is 2.5:1. Calculate quick assets and current assets. 2 equations बना के solve हो जाएगा yourself. You'll do yourself. Question number 46. Question number 46. The current assets and current liabilities ratio is 1.5:1. The accountant of the firm is interested in maintaining the ratio 2:1. Ratio है 1.5, चाहिए 2. By paying some current liabilities, accountant चाहता है कि हम current liabilities की payment करके ratio को 2:1 कर दें. Compute the amount of current liabilities should be paid, so the current ratio of the level should be maintained, may be maintained. Let the payment made to creditors or current liabilities be X. हम मानते हैं हम क्रेडिटर्स को X पे कर रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज X पे कर रहे हैं, तो हमारे करंट एसेट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे क्योंकि कैश चला गया। हमारे करंट एसेट्स कम हो जाएंगे क्योंकि कैश चला गया, और हमारी करंट लाइबिलिटीज भी कम हो जाएंगी क्योंकि क्रेडिटर्स की पेमेंट कम हो गई। So the current ratio is current assets upon current liabilities. 2/1 is equal to 6 lakh, बाद की पेमेंट माइनस एक्स अपॉन 4 लाख माइनस एक्स। मैंने पहले भी बताया था, आप पेपर में पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, CR CS CL कुछ नहीं होता। 2 times 4 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 लाख माइनस एक्स।
8 lakh minus 2x is equal to 6 lakh minus x. 8 lakh minus 6 lakh is equal to 2x minus x. 2 lakh is equal to x. लाइबिलिटीज की पेमेंट 2 लाख करेंगे ताकि रेशो 2:1 हो जाए. करंट लाइबिलिटीज शुड बी पेड रुपी 2 lakh so that current ratio may be maintained, ideally 2:1. चलिए सॉल्व करके भी देखते हैं. करंट एसेट्स हैं 6 लाख, 6 लाख से 2 लाख कैश किया, बच गया 4 लाख. करंट लाइबिलिटीज हैं 4 लाख, 2 लाख के क्रेडिट्स कम हो गए, बच गया 2 लाख. 4 लाख बाय 2 लाख इज नथिंग बट 2:1. कंप्लीट कीजिए सर, स्पीड अप. Question number 47. The current ratio of Y Limited is 2:1. State with reason which of the following would increase, decrease or not change the ratio. इससे रेशो बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी. करंट रेशो है 2:1. करंट रेशो इज 2:1. फर्स्ट पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडिंग डेटर्स 40,000 which were received. 40,000 received from debtors. रुपी 40,000 received from debtors. 40,000 डेटर्स से रिसीव हुए, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? विल इंक्रीज कैश, जो कि एक करंट एसेट है, एंड डिक्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि एक करंट लाइबिलिटीज है. 40,000 में डेटर्स से रिसीव हुए, उससे कैश बढ़ जाएगा, डेटर्स कम हो जाएंगे. तो टेक्निकली करंट एसेट्स की टोटल अमाउंट तो सेम रहेगी. दस टोटल वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स विल रिमेन सेम विदाउट impacting करंट लाइबिलिटीज. तो करंट एसेट्स की वैल्यू सेम रहेगी और करंट लाइबिलिटीज पे भी फर्क नहीं पड़ेगा. दस करंट रेशो विल नॉट चेंज. करंट रेशो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. और व्हाट इज करंट रेशो? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. सेकेंड पार्ट, company purchased furniture of 45,000. the vendor was issued shares at par. फर्नीचर खरीदा, बदले में कैश नहीं शेयर्स दे दिए. हमारी कंपनी ने फर्नीचर खरीदा और बदले में फर्नीचर की बजाय शेयर्स दे दिए. 2 परचेज ऑफ फर्नीचर इन कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स. हमने कहा आप 10,000 के शेयर्स ले लो और मुझे फर्नीचर दे दो. कल को कंपनी अच्छा काम करेगी तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी. इन कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? विल इंक्रीज फर्नीचर. इससे फर्नीचर बढ़ेगा. व्हाट इज फर्नीचर? नॉन करंट एसेट.
and will increase share capital. शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब है इक्विटी बढ़ेगी, शेयर होल्डर फंड्स बढ़ेगा, फुल स्टॉप. एज देयर इज नो चेंज इन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, thus current ratio will not change. क्या रहेगी करंट रेशियो? 2:1, सेम. कंप्लीट कीजिए. क्वेश्चन नंबर 48. क्विक रेशो 1.5:1 है. इन चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? क्विक रेशो में आपने सेम करंट रेशो के रूल्स लगाने हैं एक्सेप्ट स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि क्विक एसेट्स आर ऑल द करंट एसेट्स एक्सेप्ट स्टॉक एंड करंट लाइब प्रीपेड एक्सपेंसेस. सो 48th क्वेश्चन सेल्फ अपने आप करेंगे आप. आंसर्स गिवन है पीछे, कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे. क्वेश्चन नंबर 49. फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो कंप्यूट डेट इक्विटी रेशियो. 49th डेट इक्विटी रेशियो. What is the formula for debt equity ratio? It's debt upon equity. What debt? Debt means long-term liabilities, non-current liabilities. We have long-term borrowings and long-term provisions. So, long-term debt is equal to, डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. दैट मीन्स 8 lakh प्लस 4 lakh, 12 lakh. नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई 12 लाख. नाउ व्हाट अबाउट इक्विटी? बैलेंस शीट रूल. टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. ये चीजें प्रैक्टिस से आनी है. टोटल एसेट्स आर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स 14,40,000 प्लस 3,60,000. 1440 प्लस 360 is 18 lakh. Total assets are 18 lakh. What are actually total assets? These are total liabilities. What is total liabilities? Shareholder funds plus non-current liabilities plus current liabilities. So total liabilities are 18 लाख क्योंकि बैलेंस शीट मैच करती है. शेयर होल्डर फंड्स हमें नहीं पता. नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब डेट एंड करंट लाइबिलिटीज आर 2 लाख. तो इसे सॉल्व करके हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स आ जाएंगे जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं 4 लाख. पुट इट इनटू द फॉर्मूला इक्विटी 4 लाख. योर आंसर इज 3 times, 3 बार. जितने भी पैसे आपके अपनी कंपनी में लगे हुए हैं उससे 4 गुना ज्यादा पैसे बाहर के लोगों के
लगे हुए हैं इस क्वेश्चन में। 3 गुना ज्यादा लगे हुए हैं, 12 लाख। स्पीड अप, वाइंड इट अप। Question number 50. Calculate total assets to debt ratio. तो total assets to debt में हमारा फॉर्मूला लगेगा total assets upon debt. total assets हो जाएंगे total liabilities के इक्वल, equity shareholder funds plus long term borrowings, non current liabilities plus current liabilities. total liabilities is equal to total debt, और debt हो जाएगा long term borrowings and long term provisions. So 50 का A self, 50B, the debt equity ratio is 1:2. State whether issue of bonus share will increase, decrease or not change debt equity ratio. Debt equity is 1/2. Issue of bonus shares, अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। विल इंक्रीज शेयर कैपिटल बट डिक्रीज रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि आपके लिए खर्चा हो गया, आप किसी प्रॉफिट्स में से ही देंगे, शेयर्स इशू करेंगे। Thus total amount of equity remains same without affecting debt. दो चीजों में चेंज आया, बट इक्विटी की टोटल अमाउंट सेम रही, डेट तो वैसे ही चेंज नहीं हुआ, फुल स्टॉप। Thus ratio will not be changed. रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशो सेम रहेगी, विच इज 1:2 डेट अपॉन इक्विटी। 50 का बी पार्ट कंप्लीट कीजिए। Next question, question number 51. Next question 51. Calculate debt equity ratio. ये आप अपने आप करेंगे, debt equity ratio, self, debt upon equity, balance sheet rule. Question number 52. From the following information, calculate total assets to debt ratio. Total assets to debt ratio, as the formula says, total assets upon debt. कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, 8% डिबेंचर्स, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। सो अगर आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट, ये नॉन करंट एसेट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये करंट एसेट्स हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस,
this is our equity and 8% debentures are debt. So total assets is equal to non-current assets plus current assets. Investments 240, we'll consider non-current investments. Plant 7 lakh. Current assets में we have trade receivables 4 lakh. Cash and cash equivalents 360. So we have investments, plant, trade receivables and cash equivalents. It is 9,40,000 plus 7,60,000. 17 lakh is total. Total assets are 17 lakh. 1,10, right. What about debt? Non-current liabilities. We have 8% debentures. Debt, we have 8% debentures, which is 18 lakh. So let's put it total assets by debt. 17 lakh upon 18 lakh is equal to 0.94:1. 0.94:1. स्पीड अप कंप्लीट कीजिए. इस क्वेश्चन के अंदर करंट लायबिलिटीज नहीं गिवन. अगर करंट लायबिलिटीज गिवन होती तो कैपिटल एम्प्लॉयड को भी हम यूज करके कंप्यूट कर लेते. कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज नहीं गिवन, सो वी नीड नॉट यूज द कैपिटल एम्प्लॉयड. as write down as current liabilities is not given, comma, we have not used capital employed. हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड से आप करंट लाइबिलिटीज निकाल जरूर सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो. ये तो आपकी रेफरेंस के लिए ही है. अच्छा, क्वेश्चन 49. क्वेश्चन 49, 12 लाख बाई 4 लाख इज 3:1. मैंने 3 टाइम्स लिखा था. इट्स अ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, तो इसका आंसर रेशियो में रहता है, टाइम्स में नहीं. 3 टाइम्स लिखेंगे, टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे. सही वो भी है, एनालिसिस ही कर रहे हैं हम. बट बिकॉज सीबीएसई ने स्पेसिफिकली मेंशन किए हुए हैं यूनिट, सो विल राइट द रेशियो. ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, साथ साथ आपको पता है. और आफ्टर द क्वेश्चन आंसर्स मीनिंग गिवन है, व्हाट आर लिक्विडिटी रेशियोज, उसके ऑब्जेक्टिव्स गिवन है, आप उसे जरूर पढ़ेंगे. सो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो प्लस सॉल्वेंसी रेशियोज, मतलब लिक्विडिटी रेशियोज एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, आप
थेरेटिकल वर्क्स जरूर पढ़ेंगे जो आपको गिवन है आफ्टर द आंसर्स। आई होप आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर। उसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स गिवन है, बहुत इजी है, एक बार पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमने प्रैक्टिकल कर लिया, वो अब समझना इजी रहेगा। विच वन आई हैव गिवन, सम क्वेश्चंस आई हैव गिवन, एंड बिफोर मूविंग टू लेक्चर 11 आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे प्लस सॉल्वेंसी रेशियोज को गो थ्रू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।